Hello students, next problem in the practice set 3.3 is, it is given that in an AP the 19th term is 52. What is given? 19th term, they have mentioned that it is 52. So what we can write? We can write the solution. 19th term means what? T19 is given, which is equal to 52, and 38th term is 128. So what we can write? We can write T38 is equal to what? It is given as 128. Find the sum of first 56 terms. Okay, हमें क्या find out करना है? We need to find out the sum of. Okay, to find क्या find out करना है? S56. Okay, S56 is equal to what? That we need to find out. Okay, so S56, if I write the formula for Sn, so it will be what? It is n by 2. In bracket it is 2a plus n minus 1 into d. Okay, so from this one T19 and T38 we can get something AD, and that we can put, so that we will get this one. We can solve this one. So if I write S55 is equal to what it will become? It will become 56. 56 by 2 is equal to, it in bracket it is 2 into A plus n is what? It is 56 minus 1 into D. Therefore it will be what? 56 divided by 2, you will get 28, right? 28 in bracket it is 2A plus 55D. Okay, so this will be for the S56. Okay, then what is given? T19. Okay, so we know what is T, and T is given by A plus n minus 1 into D, right? A plus n minus 1 into D. Okay, so what is given? Given T19. Okay, so for if I write for T19, what I will get? I will get A plus 19 is what? It is 19 minus 1. So we will get A plus 18D, and which is equal to what? It is given as, it is 19 term is what? It is 52 is given. Okay, so I can say that A plus 18D is equal to what? 52. This I will call it as equation number 1. Okay, and then what? T38 we have. T38 is equal to what we'll get? You will get A plus, it is what? If I place 38 here, so this will be 38 minus 1, so which will comes out to be 37D. Okay, right? A plus 37D, which is given as 128. Okay, so we'll call this as equation number 2. Right? Now see here, if we compare this one and this one, see, suppose we have a two equations. Okay, two simultaneous equation is this one, right? Now because we have a two variables A and D, if I subtract 1 from 2, I will get easily the value of D. Okay, I will get the value of D, then I will put the value of D in one of the equation, and I will get the value of A. Okay, so that A and D I can put here. So this is what, now this problem has converted to the simultaneous equation, to solve the simultaneous equation. Okay, see the sequence of the chapters in your बुक. ओके, तो पहला उन्होंने क्या दिया था? साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस के बाद क्वाड्रेटिक, एंड देन दिस वन अरिथमेटिक. अरिथमेटिक पहले दिया होता तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द सीक्वेंस लाइक दिस. ओके, पर देखो यहाँ पे और एक मेथड है इजीली सॉल्व करने की. वो क्या है? देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मैच ऐड करती हूँ, इन दोनों को यानी इस दो इक्वेशन को, सो व्हाट आई विल गेट 2a, right? Now a plus a is what? It is 2a, and 18 plus 37 is what? It will comes out to be 55d. 2a plus 55d is equal to what? इधर क्या होगा addition? 8 plus 2 is what? It is 0, right? Now I will write it like this. Okay, okay, okay. So it comes out to be 2a plus 55d is equal to 180. Okay, so this will be, I will call this as equation number 3. So now this one, just a minute, I will call this as star. Okay, so I will put this value 2a plus 50/d in this equation. So put 3 in star. Okay, put 3 in star. So star क्या हो जाएगा? S56. S56 क्या बन जाएगा? It is 28. It is 2a plus 55d है ना? Right now I will write the complete thing. 2a plus 55d is equal to क्या हो रहा है? This is 28. 2a plus 55d की वैल्यू क्या है? It is 180. Okay, so now then you can solve this one. Okay, so you will get like this one, like that way you can solve this one, right? 56 divided by 2. Okay, you can solve this one. And the next is what?
Next question is I have written over here. Okay, understand the question right now. So what is there? 19 term is given, so it is T19, and 38 term is given, so it is T38. Okay, and they have asked the sum of first 56 terms. Okay, so I have written for the formula for the S56. Okay, so this is the formula comes out to be. Okay, then we have solved this one, and if you didn't understand how to put directly value, you can solve the two simultaneous equation and then you will get the value. Okay, next is what? Complete the following activity. Okay, so it is activity. So right now this question is asked for 2 marks, this question is for 3 marks. Okay, so complete the following activity to find the sum of नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140. ओके, ये एक्टिविटी दी हुई है. यहाँ पे हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेचुरल नंबर्स की सम फाइंड आउट करनी है विच इज फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4. क्या कंडीशन दी है? दे हैव गिवन द कंडीशंस दैट नंबर्स बिटवीन दिस वन दे आर डिविजिबल बाय 4. ओके, ये एक्टिविटी है. ये डायरेक्टली ये जो एक्टिविटी में ये दिया हुआ है. ओके, तो एक्टिविटी सॉल्व करने के टाइम पे यू हैव टू राइट सेपरेटली द वर्किंग. ओके, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सेपरेटली वर्किंग लिखनी है. ओके, सो आई विल सॉल्व दिस वन हियर. ओके, तो आप सेपरेटली वर्किंग लिखते जाओ. ओके, फिर जो जो आंसर आता है वहां पे हम लिख लेंगे वर्किंग. ओके, तो ये दिया हुआ है 1 to 140. ओके, 4 8 यहाँ पे ये है. तो ओके, सो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी 4 एंड कॉमन डिफरेंस बन जाएगा. कॉमन डिफरेंस व्हाट होगा? तो कॉमन डिफरेंस 4. ओके, लास्ट की टर्म भी बता सकते हैं हम 136 है करके. ओके, लास्ट टर्म इज व्हाट? 136 है. ओके, मतलब फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है. बट देखो उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मेनी नंबर्स. ओके, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ विल फाइंड आउट दैट वन? ओके, सो हमारे मुझे तो एक ही फार्मूला पता है. अभी अब तक हमने 2 ही फार्मूले पढ़े हैं. सो टी एन इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो हमें लास्ट टर्म पता है. लास्ट टर्म इज व्हाट? टी एन इज गिवन which is 136. Okay, so I will write here 136. A is what? It is 4 plus n minus 1 into common difference is what? 4. Okay, तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा. So what will be the n? 136 minus 4 क्या होगा? It is 132 is equal to n minus 1 into 4d. Okay, so ये क्या होगा? 132 divided by 4 is equal to n minus 1. So 132 divided by 4 क्या होता है? It is 4 3s are 12 left 1 and 4 3s are 12. Okay, so 33 n minus 1. So therefore n is equal to क्या हो जाएगा? ये 33 plus 1 हो जाएगा. n is equal to 33 plus 1. So n is equal to 34. Okay, how many numbers are there? n is equal to what? It is 34. ये हमने solve कर लिया. Then what is? You have to write the thing here. m is equal to 34. a क्या है? 4 है. Common difference क्या है? 4 है. Okay, then tn is what? a plus n minus 1 into d. Okay, okay, so tn is equal to a plus n minus 1d. so tn is what? 136. a क्या है अपना? a is 4 n minus 1 into d. so यहाँ से n फाइंड आउट किया which we got as 34. ओके, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया. अभी क्या करना है मुझे? हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ नेचुरल नंबर. सो एस सम ऑफ नेचुरल नंबर्स करना है. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, 34 टर्म्स की सम फाइंड आउट कर सकते हैं. we can take the first term n by 2. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लेके, लास्ट टर्म कौन सी है? 136 लास्ट टर्म है. ओके, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेके वी कैन फाइंड आउट द थिंग. ओके, बट इन्होंने एक्चुअली मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बट दे हैव मेंशन द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू इट इज n by 2 इन ब्रैकेट इट इज व्हाट? 2a प्लस n minus 1 into d. ओके, ये फॉर्मूला मेंशन किया है. ओके, सो इफ यू पुट दिस वन, सो n क्या है अपना? इट इज 34 by 2. ओके, देन 2a क्या है अपना? a is 4 and is what? 34 minus 1 यानी 33 हो जाएगा ये. एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज 4. ओके, सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको. सो एस एन है 34 by 2. ओके, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ तो ये बचेगा 4. ओके, आई कैन टेक द 4 कॉमन ना आउटसाइड, राइट? 4 वी कैन टेक आउटसाइड. सो ये यहाँ पे अगर 4 आउटसाइड लिखा, यहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ. ओके, सो 4 आउटसाइड लिखा तो यहाँ पे 2 बचेगा एंड 2 प्लस 33, राइट ना? राइट, 2 प्लस 33 हो जाएगा वो, राइट? n minus 1 into d.
सो ये 2 2 जा होगा, सो एंड दिस विल बी 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6 68 एंड ये कम्स आउट टू बी 33 plus 2 is what? It is 35. Okay, so this will be the sum. Sn is equal to, you can solve like this. Okay, okay, so you can do this one. Now we'll move to the next problem. Next problem क्या है? Next it is the 4th 5th 6th problem is there. Okay, so you can solve this one. So sixth problem is, they have mentioned that sum of the 55 terms in AP is 3300. Okay, it is the sixth problem. What they have mentioned? They have mentioned that the sum of the first 55 terms in AP is 3300. So can I write as 55? Okay, sum of the first 55 terms in AP is what? 3300. Okay, so I am writing the things. Find is 28th term. Okay, so they have asked T28. Okay, what they have mentioned? Find its 28th term. Okay, so we need to find out T28. Okay, this is the sixth problem from the practice set. Okay, given is what? As 55 given, sum of the first 55 term is what? 3300 and they ask T28. Okay, तो देखते हैं इसमें क्या कोरिलेशन आता है. So what we can do, as 55 दिया है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अपने पास यही डेटा है, so एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर S55. ओके, गिव सो व्हाट विल राइट, वी नो. ओके, क्या फॉर्मूला पता है हमें? वी नो दैट Sn इज इक्वल टू क्या है? इट इज n/2 इन ब्रैकेट, इट इज 2a प्लस n-1 इंटू डी. ओके, ओके, सो Sn दिया है, S55 क्या हो जाएगा? S55 हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 2. ओके, इन ब्रैकेट 2a प्लस n क्या है अपना? 55 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, विल राइट डी. ओके, सो S55 क्या है? इट इज 3300. इट इज 55 बाय 2. ये होगा 2a 55 -1 क्या हो जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 54d. ओके, तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, सो इट इज 55 डिवाइडेड बाय 2. ओके, इफ यू टेक 2 आउटसाइड, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 54 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट? इट इज 2 1 7. ओके, a प्लस 27d. ओके, तो 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या है अभी? 3300 है. ओके, तो 55 को इस साइड लाते हैं. 3300 डिवाइड बाय 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d. राइट ना? a प्लस 27d हो जाएगा. अभी इसको कैंसिल करना है क्या? 11 5 जा 55, 11 3 जा 3300, देन 5 6 जा 30 60. ओके, 5 6 जा and then left with 1 0 0 that I have put here. Okay, so 60 is equal to what? a plus 27d. Okay, एक इक्वेशन है, सिर्फ उसको ऐसे ही रहने देते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? हमें क्या फाइंड आउट करना है? T28. सो T28 क्या होगा? T28 इज व्हाट? इट इज a प्लस, हमें पता है एडजस्टमेंट, आई विल राइट Tn इज इक्वल टू व्हाट? इट इज a प्लस n-1 इंटू डी. राइट ना? हमें Tn का फॉर्मूला पता है, वो क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? T28. T28 क्या होगा? a प्लस, हमें पता है ना, n की वैल्यू पता है, तो n क्या होगा? 28 -1, सो विच कम्स आउट टू बी 27d. राइट ना? ओके, सो a प्लस 27d. ओके, सो ये मेरा T28 है जो मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, और हमारा जो आया है a प्लस 27d, उसकी वैल्यू क्या है? 60. ओके, सो इट इज व्हाट? 60. सो T28 इज व्हाट? इट इज 60. राइट ना? इज इट इंटरेस्टिंग? राइट? देखो, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है. बिकॉज व्हाट, अब तक तो हमने 2 ही फॉर्मूले सीखे, एक सीखा Tn का, एक सीखा Sn का. मतलब ज्यादा टेंशन ही नहीं है, 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं और हमारे ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम उसी इस पे सॉल्व हो रहे हैं. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अभी जो मैं 3 प्रॉब्लम ले रही हूँ लास्ट के एक्सरसाइज में से, इसी एक्सरसाइज में से, दैट प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. ओके, ये आते हैं. ओके, पूछे जाते हैं. ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? इन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27. ओके, इन एपी सम ऑफ, ओके, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. ओके, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कितना है? सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27. ओके, ओके, एंड उस बाद में एंड देयर प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, एंड देन देयर प्रोडक्ट कितना है?
प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के टाइम पे या पढ़ने के टाइम पे दिमाग में गेस कर मतलब चलना चाहिए कि क्या क्या मेरा गिवन आ रहा है। ओके, उसके लिए सेपरेट टाइम नहीं जाना चाहिए, पढ़ने के टाइम पे ही पूरा प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए। एंड देयर प्रोडक्ट इज व्हाट, देयर प्रोडक्ट इज व्हाट 504। ओके, फाइंड टर्म्स, क्या फाइंड करने हैं, टर्म्स फाइंड करने हैं, फाइंड टर्म्स। ओके, अभी सबसे पहले ध्यान दो, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव यानी क्या होता है, लगातार या अनुक्रमे, मराठी में क्या बोलेंगे, अनुक्रमे, राइट ना, जस्ट लाइक 2 4 6 8, ये क्या है, अनुक्रमे इवन नेचुरल नंबर्स, राइट। वैसे ही 3 कॉन्जिक्यूटिव, तो अभी हमें वी हैव टू टेक द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। प्लीज कीप इन माइंड व्हेनेवर द इन एपी के प्रॉब्लम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स से, ओके, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव, व्हेनेवर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो व्हाट 3 नंबर्स यू हैव टू टेक एज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, राइट ना। देखो कितना डिफरेंस है यहाँ पे, a माइनस डी क्या होगा, d, a प्लस डी, d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस d। ओके, सो दिस टर्म्स आर इन AP। व्हेनेवर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलेंगे तो आपको ये लेना है, ओके, हमेशा ध्यान में रखो। ओके, और व्हेनेवर द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलेंगे, ओके, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर 11th में भी है, ओके, एंड दिस टॉपिक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ओके, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलेंगे तो आपको a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d लेना है। ओके, ये बाकी यहाँ पे तो अब तक तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म तक ही है। अगर 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलते हैं तो आपको a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d से सॉल्व करना है। देखो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म यानी a प्लस डी, a प्लस 2d, पर यहाँ पे अगर इसका एडिशन दिया हुआ है द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का एडिशन, तो ये क्या होगा, फट से dd कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली यू विल गेट 3a। ओके, सो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो इसीलिए ऑलवेज यू हैव टू टेक द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। जब भी बोलते हैं तो यू हैव टू टेक द फर्स्ट टर्म एज a माइनस डी, नेक्स्ट टर्म एज a एंड देन a प्लस d। ओके, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सो वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। उन्होंने क्या दिया है, the sum of the 3 consecutive term is 27. So okay, sum of the 3 consecutive terms, so a minus d plus a plus d। okay, आप लोग लिखो यहाँ पे, तो 3 consecutive terms are this one, a minus d, a and d, इसको लागे तो t1 t2 t3 बोल सकते हो, राइट ना। उसका एडिशन उन्होंने मेंशन किया है, कितना एडिशन, इट इज 27। देन अगर इसको ऐड करें तो क्या होगा, dd कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 3a इज इक्वल टू 27। ओके, देन a इज इक्वल टू व्हाट, a क्या हो जाएगा 9। ओके, a की वैल्यू तो मिल गई, चलो a की वैल्यू मिल गई, वी नीड टू फाइंड द टर्म्स, मतलब ये फाइंड आउट करना है, a माइनस डी, a प्लस डी। ओके, वैसे भी सेकंड टर्म पता चल गई विच इज 9। ओके, अभी हमें d फाइंड आउट करना है ताकि वी कैन फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म। देखो फिर ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, देयर प्रोडक्ट इज 504। ओके, यहाँ पे लिखो फ्रॉम सेकंड कंडीशन। ओके, यू कैन राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ओके, हम वो फर्स्ट चैप्टर में यानी लीनियर वेरिएबल्स के चैप्टर में लिखते थे ना। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, देयर प्रोडक्ट यानी a माइनस डी, देन a एंड देन व्हाट, इट इज a प्लस डी, इसका प्रोडक्ट कितना है 504। ओके, सो a माइनस डी इंटू a प्लस डी, इसको हम करते हैं तो क्या मिलेगा, यू विल गेट, फॉर्मूला कौन सा है ये, a स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी, a माइनस बी, यानी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a माइनस डी, a प्लस डी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस डी, सॉरी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। ओके, देन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू क्या होगा 504। ओके, सो a स्क्वायर यानी क्या है, इट इज 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वैसे रखना है, a की वैल्यू क्या है 9, आई विल पुट हियर इज इक्वल टू 504। ओके, 9 स्क्वायर क्या होगा 81 माइनस डी स्क्वायर, राइट, 81 माइनस डी स्क्वायर, ये क्या होगा 509 इस साइड लेके जा रही हूँ, 504 बाय 9, तो इसका क्या आएगा, सो 9 5 जा 45, लेफ्ट विथ 5 4, 9 6 जा 54, सॉरी, राइट ना, 9 6 जा 54, सो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 हो रहा है। सो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर,
ओके 81 माइनस 56 कितना होता है, सो विच इज व्हाट 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर. सो देयरफॉर डी की वैल्यू क्या रहेगी, डी की वैल्यू रहेगी प्लस माइनस 5, राइट ना. ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किया था, जो प्रॉब्लम था ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसमें सॉल्व किया था. तब मैंने आपको एग्जाम्पल के टाइम पे डायरेक्ट लिख दिया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो उसका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 करके, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड द नेगेटिव स्क्वायर रूट. ओके, तो डी मिल गया है. अभी क्या करना है, डायरेक्ट पुट करना है. फर्स्ट टर्म टी1 क्या है, a माइनस डी. ओके, जस्ट अ मिनट. अभी हम क्या करते हैं, मेरे पास तो 2d है. ओके, सो केस 1 लेते हैं. केस 1 इज व्हाट, विद d इज इक्वल टू 5. ओके, सो t1 t2 t3 फाइंड आउट करते हैं. उसके साथ में क्या होगा, t1 क्या अपना a माइनस डी, t2 व्हाट, t2 is what, t2 is a and t3 is what, it is a plus d. Okay, so a minus d यानी a क्या है, a क्या है, what is a is 9, 9 minus 5, 9 minus 5 is what 4. Then what is a is what, a is, यहाँ पे a लिख लेती हूँ, a is what 9 and 9 plus what, 9 plus common difference क्या है 5 है, 9 plus 5 is what 14. देख राइट ना, 4 9 14. ओके, कॉमन डिफरेंस 5 का है. ओके, तो ये हो गया केस 1. देन केस 2 क्या है अपना, d इज इक्वल टू माइनस 5. ओके, सो t1 t2 t3. ओके, सो a माइनस डी यानी 9 माइनस 5. ओके, सो क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 14. a इज इक्वल टू व्हाट 9. ओके, t3 इज व्हाट a प्लस d, सो विच कम्स आउट टू बी 9 माइनस 5 which is 4. देखो तो हमारे टर्म्स क्या रहे, टर्म्स आर व्हाट, टर्म्स क्या मिले हमें, टर्म्स मिले यहाँ पे 4, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखती हूँ राइट ना. टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव बोला ना, द 3 फाइंड द टर्म्स. ओके, टर्म्स क्या है अपने, फर्स्ट इज व्हाट 4 9 एंड 14. ओके, और क्या रहेगा, ये रहेगा 14 9 और 4. ओके, वही है, क्योंकि इसका सम तो वही होना चाहिए. सम कितना होना चाहिए 27. आप करके देख लो राइट ना. तो ऐसे या ऐसे. ओके, मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड. ओके, बट दीज आर द नंबर्स. ओके, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. इससे क्या सीखा हमने, वेन एवर द दे विल मेंशन दैट इट इज द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोले तो विच टर्म्स वी हैव टू टेक, यू हैव टू टेक a माइनस डी, a and a plus d, right? अगर 4 consecutive terms है तो you have to start with a minus d, a plus d and a plus 2d. Okay, so next problem हमारा वही है, find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12. Okay, next problem I will write here. Okay, next problem है नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4 consecutive terms in an AP, sum is 12. ओके, 4 consecutive terms है, 4 consecutive terms और सम मेंशन है 4 consecutive terms. सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, व्हाट इज द सम, सम इज 12. ओके, 4 consecutive terms का सम है 12 and sum of third and fourth term. Okay, and sum of third and fourth term. Sum of third and fourth term is what? Sum of the third and fourth term is mentioned. That is what? It is 14. Okay. So हमें क्या find out करना है? We need to find out the 4 consecutive terms. Okay. Find 4 consecutive terms है. Okay. This is the 7th problem. Sorry, 8th problem. Okay. So अभी मैंने समझाया consecutive terms है, हमें कौन सी लेनी है? It is a minus d. Then a plus d, then what, a plus 2d. इसका सम दिया हुआ है 12. ओके, तो इसका अगर हम सम ले रहे तो क्या होगा, डी कैंसिल हो जाएगा. ओके, डी कैंसिल हुआ तो वी लेफ्ट विथ 2d, राइट ना. दिस d and d is cancel, so we left with 2d. and ये क्या हो रहा है, a, so it is 4a plus 2d is equal to 12. So which is nothing but it is 2a plus d is equal to 6. Okay, so a की equation मिला. Then third and fourth term,
ओके, तो थर्ड टर्म कौन सी है? दिस इज T3. ओके, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे T1, T2, T3 एंड दिस इज T4. ओके, थर्ड एंड फोर्थ टर्म. ओके, ये फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द सेकंड कंडीशन. ओके, सेकंड कंडीशन क्या है? थर्ड T3 प्लस T4 इज व्हाट? इट इज 14. ओके, T3 क्या है? A प्लस D एंड देन व्हाट? A प्लस 2D. उसकी सम कितनी दी हुई है? 14th. ओके, सो what is what? It is what? 2A plus 3D is equal to 14. Okay, तो अभी क्या करो आप लोग? Solve these two equations. Direct subtract करो. You will get the value of A and then put this value in this equation. You will get the value of D and then find out A minus D fourth term T1, T2, T3, T4 आप लोग find out करो. I will leave this to you. Okay, so यहाँ पे हमें A की वैल्यू मिल रही है द वैल्यू ऑफ D इज व्हाट? D इज कम्स आउट टू बी 4. ये सॉल्व कर लो आप लोग. D की वैल्यू 4 आ रही है और A की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है. तो आप लोग बाकी का सॉल्व कर लो ये. ओके, यू कैन डू दिस वन इजी टास्क. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द नाइन्थ टर्म, नाइन्थ वाला प्रॉब्लम है. ओके, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम दिस फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट 3.3 and the problem is if the ninth term of AP is 0. Okay, ninth term, okay, means T9th. Okay, T9th क्या है? of AP is 0. T9 is mentioned, it is 0. then हमें show that करना है. we need to show that it is what the 19th it is 29th term is twice that of T 19th. ओके, सो मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया, पर यहाँ पे मेंशन है कि ninth term is what? 0. in an AP the ninth term is 0. then we have to show that the 29th term is twice the 19th term. okay, so ये हो गया. तो इससे क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन? ओके, सो गिवन क्या गिवन है? गिवन T9 फॉर क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. गिवन T9 इज इक्वल टू 0. टू शो क्या शो करना है? T29 is equal to 2 times T19. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट T29 minus 2 T19 is equal to 0. ये हमें शो करना है. ओके, तो T9 is equal to 0 यानी उससे हम स्टार्ट करते हैं. T9 यानी क्या होता है? Tn is equal to होता है A plus n minus 1 into D. ओके, सो T9 क्या होगा? T9 will be is equal to A plus 9 minus 1 यानी 8D. ओके, सो T9 0 है, मतलब A plus 8D is equal to 0. so this is 1. okay, अभी इसको हम लेते हैं सॉल्व वाले. इसको हम 1 बोलते हैं. सॉरी, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं. ओके, इसमें क्या करते हैं? कंसिडरिंग LHS ऑफ 1. कंसिडरिंग LHS ऑफ 1. ओके, LHS कंसिडर करते हैं और इफ LHS इज इक्वल टू 0 आया तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा एंड इट विल बी शो. ओके, सो T29 सबसे पहले लिखते हैं. T29 क्या होगा? इट इज या इस फॉर्मूले से क्या होगा? A प्लस 29 माइनस 1 यानी 28D. ओके, वैसे ही T19 क्या होगा? दिस विल बी A प्लस 18D हो जाएगा. ओके, सो अभी मैं LHS कंसिडर कर रही हूँ. ओके, ये पहले लिख लिया मैंने. ओके, सो T29 माइनस 2 T19 मेरा LHS है. ओके, ये मेरा LHS है. ओके, T29 यानी A plus 28D. okay, minus 2 times right ना, it is what? 2 times A plus 18D. okay, तो ये क्या हो जाएगा? this will be A plus 28D minus 2A, right? and then it is what? minus 2 into 18 was, it is minus 36D. okay, so ये क्या हो जाएगा? A minus A is what? minus A. 28 minus 36 what? it is minus 8D. so हम minus outside लेंगे. A plus 8D. ओके, A plus 8D क्या है? A plus 8D is what? It is 0. कहाँ से 0 है? From 2. कहाँ से लिखा है ये मैंने? From 2 से. ओके, तो देखो अभी क्या मिला हमें? LHS is equal to 0. ओके, सो ये क्या है? 0 ही है. T29 minus 2 T19 क्या है? 0. ओके, therefore what? LHS is equal to RHS. ओके, hence prove हो गया. क्या होगा अपना? hence prove. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, ओनली अब तक देखो इसकी ब्यूटी क्या है ये चैप्टर की? ओनली अब तक 2 ही फॉर्मूले यूज हुए हैं और अपने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.